Yes, Aarti ma'am, I am handing over this mic to you. Okay, Aarti ma'am, I am handing over this mic to you. Now you can continue. Yes, it is done, ma'am. It is done. A very warm good morning to all the parents, students, and DCM staff. Today's session of EHP is indeed a special in itself, as an ex-student of DCM school is going to conduct the same and share her experiences of life with you all. Now, before she takes over the session, I would like to give a brief introduction of hers. Ma'am Anuradha, she's a prolific writer and an amazing traveler. She wears many hats to pursue her three prime interests: business innovation, travel, and books by writing about them in books, blogs, and columns. She's the founder of Indie Tales, a leading bilingual travel media portal where she documents her global travels in words, audio, and video formats with a focus on ancient India. An avid writer, an avid reader, she has more than 700 book reviews to her credit, earning her a place in the Limca Book of Records. She is also the author of Lotus in the Stone, Sacred Geography in Internal India. That is her latest work. Unusual Temples of India and the Mouse Charmer, Digital Pioneers of India, she wrote in 2014. Now, Miss Anuradha, she passed out from our school in 1987. And further, she studied her physics. She took physics and computer sciences from Punjab University. After that, she worked in IT sector for 12 years and lived in different parts of the world. Now, we welcome you, ma'am, to this session of EHP. It's an honor to have you with us. You are a wonderful person with a wonderful view of life. Now, I request you to take over the session and enlighten us with your life experiences. Over to you, ma'am, Anuradha ma'am. Namaste, pranam. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस सेशन का कंडक्ट करने के लिए बुलाने के लिए. It's a very emotional and a nostalgic moment for me. Like you said, in 1987, I passed out of the school, and almost after 33 years, I am on the other side of the table and talking to you and reconnecting with my own roots, which is essentially what I'm going to talk about today, reconnecting with our own roots. So a DC Model School is also one of my roots, my personal roots, from where I took, from where the seed that was sown is standing in front of you. So thank you very much for inviting me. Can you allow me to share the screen? It is done, ma'am. You can take on. No, you have to unshare your screen before I can share mine. Okay, sure, I'm doing it. Yes, ma'am, please, you can. Okay. Anu, the parents will be comfortable in Hindi. So, okay, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ सर. मैं पूछने ही वाली थी कि ज़्यादा हिंदी में बात कीजिएगा. जी. You can mix that. Okay. जी. नहीं, मैं हिंदी में बात करना प्रेफर करती हूँ, unless किसी को हिंदी नहीं आती हो और किसी को हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे. मैं आपसे बहुत कुछ भारी भरकम बात नहीं करने वाली. मैं अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूंगी, जो छोटी मोटी लाइफ की लर्निंग्स मैंने शेयर की हैं, और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, बिकॉज आई वांट टू नो यू. यू नो, इफ समबडी सेड कि मुझे अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना है, तो आई विल कॉल माई सेल्फ अ लर्नर. सो आई एम नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी आप लोगों से कुछ सीखने की.
So I'm going to talk about discovering myself, discovering my own roots, जिसको हम अहम कहते हैं, अहम ब्रह्मसि कहते हैं, या जिसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहते हैं. जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो हमारे पिंड में है, जो हमारे शरीर में है, जो इस शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है. और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो ज्योतिष शास्त्र है उसका पूरा का पूरा प्रेमाइस यही है कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है. थोड़ी सी मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी. मैं इंडिया का सबसे बड़ा ट्रैवल ब्लॉग चलाती हूँ, वर्ल्ड के लीडिंग ट्रैवल ब्लॉग्स में है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. इसमें 1000 से ज्यादा ट्रैवल आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो पॉडकास्ट हैं. मैंने पिछले साल एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था जहां हम भारत के प्राचीन यात्रा परंपराओं को फिर से मैम जी मैम have the option to disable the annotation. Because students are scribbling on the screen. Now you have the options because you are sharing the screen. Okay. You can disable that annotations. Students are doing painting on the wall right now. Okay, clear. I request for in between all the students to please do not write anything on the screen. Please maintain this discipline, children. Harman Singh, I can see your name. Please do not write anything on it. Okay, I can clear. I don't know how to disable. More options. Options, you can go to the options and you can disable from there. The 3 dots, right hand side at the top, you will see the 3 dots. And yes, done. Navjot, Dhiman. Done. Yes, that's okay. That's okay. Students will be students, you know. That's how that's how they will remember their days later. So anyways, coming back to this, so I also run a podcast called Detours with Anuradha Goyal, where I'm trying to figure out a lot of ancient stuff about India. For example, पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट पब्लिश की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी से. नाउ बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया ओशनियोग्राफी में क्या रिसर्च कर रहा है और हमारे लिए कितनी सारी ऑप्शंस हैं उसमें अपना करियर बनाने की. सो आपको जब भी समय मिले आप देखिए, हम बहुत सारे ऐसी चीजें लाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में जो हमारे आसपास है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. Moving. Wait. I think you have selected the pen. Okay. Yeah, I got it. So ये मेरी पहली बुक थी. ये मेरी सेकंड सेट ऑफ बुक्स हैं. अनयूजुअल टेम्पल्स ऑफ इंडिया, भारत के अनोखे मंदिर, और एक अयोध्या पे अभी किताब है. ये आने वाली है. It should be out in another month's time or so. But the book that I'm going to primarily talk about is this book called Lotus in the Stone, which sir has very kindly ordered in bulk for all of you to read. This book documents my personal journey of being an ignorant Indian, of not knowing anything about my roots and only being focused on कि करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, करियर बनाना है. और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं ऐसे समय पे मेरी एजुकेशन हुई जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया में इट वाज जस्ट टेकिंग बर्थ. So 1995, when I passed out of Punjab University in Chandigarh, I was the first batch of, I was the first batch of DC Model School, and I was the first batch of Masters in Computer Applications in Punjab University. And when we got placed, and IT industry was just taking birth. So हम स्कूल कॉलेज से निकले और अच्छा खासा कमाने लगे, और उसके बाद the world became our playground. दुनिया भर के देशों में काम किया, देशों के साथ काम किया. पैसा was never an issue. I was earning far more than anybody in my peer group was earning. By the age of 30, I had my own house, I had my own car, I had everything that one can dream of. I was traveling around the world. Anything that I wanted was on the platter for me. I worked very hard. It's not that it was given to me. I worked very hard for it. There were times जब मैं ऑफिस जाती थी और 36 घंटे घर वापस नहीं आती थी बिकॉज इतना काम करना होता था. लेकिन पैसा भी मिला, सब मिला. I was like the poster child for what parents look for in their successful children.
और इसी करियर ने मुझे दुनिया भर में घूमने का, दुनिया को देखने का, समझने का भी मौका दिया। आई थिंक इन 2002 मैंने नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में शिफ्ट किया, बैंगलोर में शिफ्ट किया। तब बहुत लोग नहीं शिफ्ट करते थे। आई वॉज वन ऑफ द फ्यू हु शिफ्टेड टू बैंगलोर देन, और मैं अकेले रहती थी बैंगलोर में फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और तब मैंने बहुत सारा भारत एक्सप्लोर करना शुरू किया, वीकेंड्स पे, लॉन्ग हॉलीडेज पे छुट्टी लेके, फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। बहुत रीजन से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं तो इस देश को जानती ही नहीं हूँ, और इस देश में मेरी अपनी जड़ें बहुत छुपी हुई हैं। अगर हम रामायण की कहानी नॉर्थ में सुनते हैं तो उसका रास्ता जो है वो दक्षिण से होके ही निकलता है, या हम बहुत सारी चीजें जो सिर्फ सुनते हैं वो मुझे देखने को मिली। और जब वो देखने को मिली तो कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव होता गया अपनी जड़ों के साथ, और वो जुड़ाव इतना स्ट्रांग होता गया धीरे 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 कि मैंने अपना आईटी करियर छोड़ दिया और मैंने फुल टाइम ट्रैवल करके इंडिया के बारे में और इंडिया के बाहर भी बहुत जगहों के बारे में लिखना शुरू किया। और थैंकफुली जब मैंने लिखना शुरू किया 2004 में, तो ब्लॉगिंग एक नया टूल था, एक नया फील्ड था, जिसमें कल को क्या होगा किसी को नहीं पता था। बट आई हैव बीन एन एक्सपेरिमेंटर इन लाइफ। तो मैं लिखती गई, और लिखने से क्या हुआ, मेरा काम बहुत लोगों तक पहुंचने लगा, लोग मेरे से जुड़ने लगे। दूर दूर से लोग मुझे बुलाने लगे कि आप आइए, हमारे देश को देखिए, हमारे शहर को देखिए, हमारे गांव को देखिए, हमारे रीजन को देखिए, और आप लिखिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो लोगों को हमारे बारे में पता चलता है और लोग आते हैं। फिर टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग मुझसे जुड़ने लगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग मुझसे जुड़ने लगे, और करते करते ये आज इतना बड़ा ट्रैवल ब्लॉग सेट हो गया है। और आई एम वेरी प्राउड टू से मैंने दुनिया भर टूरिज्म बोर्ड्स के साथ काम किया है, विच मीन्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वर्ल्ड, जहां वहां की सरकारों ने मुझे बुलाया। कनाडा गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, हांगकांग गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, सिंगापुर गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, यूरोपियन गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया कि आप आइए, देखिए और हमारे बारे में लिखिए। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स लॉट ऑफ इंडियन ट्रैवल टूरिज्म। मैं बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया, कंसल्टेशंस की, पीएमओ तक को मैंने अपनी इनपुट्स दी हैं कि इंडिया में टूरिज्म को कैसे सुधारा जा सकता है। और लेकिन इन सब का जो कल्मिनेशन था, मेरी जो पर्सनल जर्नी थी डिस्कवरी की, उसको मैंने इस बुक में लिखा है। कि जहां मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मेरे सामने एक मूर्ति रख दी जाए तो वो मूर्ति किसकी है, टू द एक्सटेंट कि आज मैं आपको उसके ऊपर एक पूरा कोर्स कंडक्ट करके दे सकती हूँ। तो आपको जब भी समय मिले आप इस बुक को पढ़िएगा। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ। ये एक ऋग्वेद से एक श्लोक है जो हमें कहता है कि हर किसी को चलते रहना चाहिए। कहते हैं जिसका जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, और जो चलता है उसके साथ साथ उसका भाग्य भी चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चलता रहे, चमकता रहे, तो आपको भी चलते रहना पड़ेगा। This is just to set the tone. Now I'm going to ask you to do a small exercise. For next 30 seconds, हम सब चुप हो जाएंगे और आप मुझे बताइए आपको क्या क्या साउंड्स सुनाई दे रही है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबके पास चैट बॉक्स है? अनुभव जी, सबके पास चैट बॉक्स है? यस। आप बताइए चैट बॉक्स में लिख के कि आपको क्या क्या साउंड सुनाई दे रही हैं फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। आई एम रीडिंग ऑल द चैट्स। आपको अपने पास जो भी साउंड्स सुनाई दे रही हैं उसे चैट बॉक्स में लिखिए। चर्पिंग बर्ड्स, मूविंग व्हीकल्स, बर्ड्स, बेल्स, पीपल, वेरी गुड। और ध्यान से सुनिए, क्लॉक, और ध्यान से सुनिए, मूविंग व्हीकल्स, क्लॉक, डॉग बार्किंग, क्लॉक साउंड, great, TV sound, geyser sound, very good, okay, great, we are done with the exercise. अभी हम दूसरे footsteps, moving vehicles, ठीक है।
Very good. Neha Kasana ji, very good. My heartbeat. Okay, great, great. We'll stop it here. Song sound. We'll stop it here. I'll move on to the next. अब मुझे बताइए कितने लोगों को ये सुनाई दिया? इसने अपनी ब्रीदिंग की साउंड सुनी. हमने बाहर की सारी साउंड सुनी. एक नेहा कसाना जी ने बोला कि उन्होंने अपनी हार्ट बीट सुनी, लेकिन हमारी ब्रीदिंग की साउंड होती है. और आपने अभी अभी मेडिटेशन की है, सर ने आपको बहुत सुंदर सी मेडिटेशन कराई है. आप बताइए कि आप में से कितने लोगों ने ब्रीदिंग की आवाज सुनी? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत लोगों ने सुनी. सर की मेडिटेशन आपको हेल्प कर रही है. ग्रेट. सो जिन लोगों ने नहीं सुनी, जिन लोगों ने सुनी बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं सुनी, ये हमें बताता है कि हम जो चीजें हमारे सबसे पास होती हैं, जो हमारे इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लिविंग होती हैं, उसी को कभी कभी हम भूल जाते हैं और हम दुनिया भर की सारी चीजें सुनते रहते हैं. ओके ओके. अब बताइए, आप में से कुछ लोग अपने नाम का मतलब बताइए. आपका जो भी नाम है, आप बताइए आपके नाम का मतलब क्या है. आई कैन सी somebody called मीनाक्षी. मीनाक्षी जी, आपके नाम का मतलब क्या है? कैन यू टेल मी? नम्रता. नम्रता, आपके नाम का मतलब क्या है? नम्रता का मतलब प्यार नहीं होता. नहीं बेटा. हर्षिता का मतलब हैप्पीनेस इज अ वेरी वेरी जेनरिक वर्ड. देव का मतलब देव नहीं होता. देव का मतलब होता है दिव्य. देव का मतलब होता है जो अंदर से अपनी लाइट से जलता है. शिवाय का मतलब पोलाइट नहीं होता. प्राची इज अ डायरेक्शन बेटा. प्राची सिंगला जी, प्राची इज अ डायरेक्शन. चलिए, मैं आपको मेरे क्या कर रहे हो? मैं कह रहा, सुन रहे हो? अपने नाम का मतलब बताती हूँ, फिर आप देखिए कि उस तरह से आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड लुक फॉर योर नेम. मेरा नाम है अनुराधा. ये 2 वर्ड से बना है, अनु एंड राधा. डिस्टर्ब मत करो, गेट बंद कर दो. राधा का मतलब चल रहा है वो जो आपको आपकी वृद्धि कराने में, आपकी वृद्धि कराती है, जो आपको बढ़ाती है, जो ग्रोथ कराती है. और अनुराधा का मतलब होता है अनुकूल, जो आपको अनुकूल दिशा में ले जाए, वो अनुराधा है. और अगर हम पौराणिक कहानियों में जाएं तो आपको पता है हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें जो 17वां नक्षत्र होता है उसका नाम अनुराधा है. आप में से बहुत लोग जो अक्टूबर नवंबर में पैदा हुए होंगे वो इस नक्षत्र में पैदा हुए होंगे. और पौराणिक कहानियों में ये एक मून की, चंद्रमा की एक पत्नी का नाम भी है. तो ये जब मैंने अपने नाम पे रिसर्च की तो मुझे इतना कुछ मिला. उसके बाद मैंने सर के नाम की, भरत के नाम का थोड़ा रिसर्च किया. तो ये मैंने देवी भागवत पुराण से लिया है, लेकिन बहुत पुराणों में मिलता है. उत्तरस्य यत् समुद्रस्य हिमवत् दक्षिणम च यत् वर्षम तद भारतम नाम यत्रेयम भारती प्रजा. मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमवान हिमालय के दक्षिण से भारत कहते हैं, और वहां की प्रजा को भारती कहते हैं. लेकिन फिर भी ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन तो आ गया, लेकिन फिर भी भरत क्यों कहते हैं? क्योंकि भरत का जो पीछे का मतलब है, जो रूट वर्ड का मतलब है संस्कृत में, वो है भरण. जो आपका भरण पोषण करता है वो भरत है, और जिनका भरण पोषण करता है वो भारती है. तो इस तरह से अगर आप अपने अपने नाम खोजने जाएंगे तो आपको बहुत से इंटरेस्टिंग मीनिंग मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आप उस नाम के मतलब से अपनी लाइफ का इम्पैक्ट भी देखेंगे, अपनी लाइफ में इम्पैक्ट भी देखेंगे. आप कुछ लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए. बहुत मुश्किल, थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत. अभी किसी ने बोला देव का मतलब हम मानते हैं देवता, बिल्कुल देवता है. लेकिन देवता को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दिव रूट से बनता है. दिव का मतलब है, दिव धातु का मतलब है जो दिव्य हो, जो अपनी अंदर की
लाइट से चमकता है, जिसकी चमक अंदर से आती है, बाहर से नहीं, जो स्वयं ही चमकता है। तो इस तरह आप अपने नाम का मतलब ढूंढिए। और थैंकफुली इंडिया में हम सबको बहुत मीनिंगफुल नाम दिए जाते हैं, ज्यादातर लोगों को। तो ढूंढिए, बहुत बहुत मजा आएगा ये एक्सरसाइज करने में। और जैसा हम जानते हैं क्यों रूट से जुड़ना है, हमें क्यों रूट से जुड़ना है, क्योंकि जब तक हम रूट्स अपनी स्ट्रांग नहीं करेंगे कोई बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, हम सब जानते हैं जब तक म्यूट वो कर सकती है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये मीनिंग का हाँ जी Beta, we are going to take this this one your queries later on. बेटा अभी आप सेशन के बीच में नहीं बोलेंगे, लेट मैम कंप्लीट, उसके बाद हम सब बच्चों की क्वेरीज लेंगे। ठीक है बेटा, अभी मैम को सुनिए आप। चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ ठीक है बेटा, बाद में सुनेंगे ना, फिर मैम को कंटिन्यू करने दो। ओके, आती हूँ मैं आपके ऊपर। तो हम अपनी रूट्स से क्यों जुड़े, क्योंकि जितनी हमारी रूट स्ट्रांग होंगी, जितना हमारा रूट्स के साथ की पकड़ अच्छी होगी, उतने ही हम फलेंगे फूलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत में अगर हमारे में कुछ कमियां हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं। हम जड़ से कटे हुए पेड़ हैं, और हम सब जानते हैं कि जड़ से कटा हुआ पेड़ बहुत देर तक फल फूल नहीं सकता, उसके पत्ते गिर जाएंगे, नए पत्ते नहीं आएंगे, और वो एक डेकोरेशन पीस बनके, जिसको ड्रिफ्ट वुड कहते हैं, वो बनके रह जाएगा। तो इसलिए हमारा अपनी जड़ों से जुड़ना और जड़ों को मजबूत करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलो बताओ, आपका बर्थडे कब है? इज देयर एनीबडी हु कैन नॉट टेल हिज और हर बर्थडे? सबको अपने बर्थडे पता है? यस मैम। आपको पता है ना मैम ओके। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करती हूँ। मुझे बताओ, तुम इंडियन कैलेंडर से किस तिथि को पैदा हुए थे? मैं तो पैदा हुई थी कार्तिक शुक्ल नवमी को। अब तुम बताओ, अब जिनको नहीं पता अपने पेरेंट्स से पूछ के बताओ। अगर कोई भी बताएगा तो उसको प्राइज मिलेगा। मैम आषाढ़। मैं एक नवंबर नहीं, कार्तिक तो मंथ हो गया बेटा, उसमें तिथि भी होती है। 28 4/20 ये तो जूलियन कैलेंडर है। आपको पता है कितनी तरह के कैलेंडर होते हैं? और अपने यहाँ एक ऑफिशियल इंडियन कैलेंडर है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा एक तिथि से बर्थडे भी होता है। मैम माय बर्थडे इज ऑन 8 आषाढ़। 8 आषाढ़। अब मम्मा पापा से ये पूछो, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष? मैम शुक्ल पक्ष। वाओ, कौन है ये बच्चा? वेरी गुड। तो अब ये याद रखना, ठीक है सबके सब, ये बर्थडे अपना याद रखना, अपने मम्मी पापा पूछना, ठीक है ना? बता कौन से महीने में आ जाए? प्लीज म्यूट योर माइक। Please mute your mic. Talk to your parents by muting your mic. बेटा म्यूट योर माइक एवरीवन। चलो अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारा ये गेम है, हम गेम खेल रहे हैं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मुझे बताओ, आपके सिटी में सबसे पुरानी चीज क्या है? चैट बॉक्स में लिखो, सबसे पुरानी चीज क्या है आपके सिटी में, आप जिस सिटी में रहते हो? टेम्पल। कौन सा टेम्पल? ऐसे नहीं, सुखना लेक तो अभी 50 साल पुरानी है सर। पार्क, कौन सा पार्क? गुरुद्वारा बौली साहब, गुरुद्वारा 300-400 साल पुराना है। रॉक गार्डन तो 50 साल पुराना है। मनसा देवी मंदिर बहुत पुराना है। पूरो, पूरो क्या है? मैम कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ओके। अच्छा, उसका छोटा नाम कुरो है, ओके। किला, कौन सा किला? किला तो अमृतसर, अमृतसर बहुत पुराना नहीं है। अमृतसर 300-400 साल पुराना।
मैम मैंगो ट्री कितना पुराना होगा? 350 साल से। हाँ, ये किसने बोला? शिवाय, भीमा देवी टेम्पल। ये देखो, ये देखा है आप लोगों ने भीमा देवी टेम्पल? नो मैम। ये आप पिंजौर गार्डन गए हो सब लोग? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये आपके यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। इसी मंदिर का पत्थर उठा के पिंजौर गार्डन बनाया गया था। पता है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट टाइम जब पिंजौर जाओगे तो ये देखोगे। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, बहुत सुंदर म्यूजियम है, जस्ट पिंजौर गार्डन के गेट के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जाओगे तो देखोगे सब लोग। यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये आपके पंचकुला चंडीगढ़ एरिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग्स दैट एग्जिस्ट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन करेंगे तो आप लोग मेरे से फोटो शेयर करोगे? अगली बार आपने जाना है वहाँ पर, फोटो शेयर करनी है मेरे साथ। ओके, चलो अभी म्यूट योर माइक प्लीज। अब मुझे बताओ, टेल मी द ओल्डेस्ट थिंग इन योर कंट्री। मैम लाल किला। लाल किला तो 300 साल पुराना है बेटा, 300-400 साल। ओल्डेस्ट थिंग इन योर कंट्री, ओल्डेस्ट। मैम अयोध्या मंदिर। मैम कुतुब मीनार। नहीं बेटा, कुतुब मीनार तो बहुत। विद्या मंदिर। कौन सा मंदिर? मैम अयोध्या वाला मंदिर। ओके, हो सकता है। वाला महल। ताजमहल नहीं बेटा, ताजमहल तो 300। राम मंदिर भी नहीं। अच्छा, कुआ। ये देखो, ये है घुघुआ नेशनल पार्क। ये है नहीं, अजंता एलोरा। बहुत सबसे पुरानी चीज मैं बता रही हूँ। ये है घुघुआ नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है। ये फॉसिल पार्क है। आपको पता होगा ना, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि सारे फॉसिल्स बन जाते हैं जब पेड़ बहुत देर तक दबे रहते हैं जमीन के अंदर। तो ये देखो, पेड़ जो है वो पूरा संगमरमर बन गया है इस फोटो में। तो ये इंडिया में सबसे पुरानी नेचुरल हेरिटेज है। ठीक है, और जो बिल्ट हेरिटेज है वो है भीमबेटका केव्स। वो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, इन डिटेल्स पे पढ़ सकते हैं उसके बारे में। नहीं, कुंभलगढ़ तो बहुत 300-400 साल पुरानी चीजें तो इंडिया में नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा चलो अभी देखते हैं आप लोग अपने सिटी को कितना जानते हो। टेल मी अ साइंटिस्ट फ्रॉम योर सिटी, फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम योर सिटी। आप में से बहुत सारे बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं ना? हाँ, आइंस्टाइन पंचकुला से हैं, चंडीगढ़ से हैं, इंडिया से हैं। बताओ, आपको पता है कि चंडीगढ़ में जो इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं उसमें से 11 to 12 साइंटिस्ट चंडीगढ़ से हैं। मैडम मुझे नाम दसो जो इंडिया के ना टॉप साइंटिस्ट। तो अब आप ये इसका आंसर मैंने, ये आप करना। कल्पना चावला was an astronaut, she was not a scientist. ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, आपके सिटी का फेमस म्यूजिशियन बताओ मुझे, जो फेमस है साइंटिस्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा। Who is the famous musician from your city? From your city? मैम जय भगवान चौधरी साइंटिस्ट। कौन? तानसेन आपके शहर से है नमन जी? KPJ अब्दुल कलाम। वो आपकी सिटी से है बेटा, वो तो तमिलनाडु से है ना? चलो अब मुझे बताना कि आपके सिटी के फेमस म्यूजिशियन कौन है, और फिर मुझे बताओ आपके सिटी के बारे में कोई किताब है जो मैं पढ़ सकती हूँ, पंचकुला के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में, या कोई किताब है जो मैं पढ़ सकती हूँ? बताओ मुझे।
और अगर नहीं है, अगर आप सब ने मिलके मुझे कहा कि कोई किताब नहीं है, तो फिर आपको लिख के देनी होगी। फिर आप में से किसी को मेरे को वो किताब लिख के देनी होगी, ये प्रॉमिस मुझे चाहिए। मैं आपकी सुपर 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 डुपर सीनियर हूं, तो इसको रैगिंग समझ लो। मैम राजू पटलबी सुंदर। मैम साइंस। हाँ, आपके सिटी के बारे में कोई किताब लिखी है? कोई किताब है जो कोई पढ़ सकता है? राजू अभी बताओ। बताओ बच्चों, पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि कोई किताब है जो हम पढ़ सकते हैं पंचकुला चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ रिवील्ड ला कॉर्बूजियर सिटी। ठीक है, एक ला कॉर्बूजियर सिटी है, लेकिन एक ला कॉर्बूजियर तो बना के चले गए। अभी आज के चंडीगढ़ के बारे में कोई बुक है? तो आप मुझे बताओ, कौन लिखेगा? कौन लिखेगा इस अपने सिटी के बारे में बुक? जो भी लिखेगा उसकी पूरा हेल्प और सपोर्ट मुझसे मिलेगा उसको लिखने में। वेरी गुड, भाविक ने लिखा है, मंजू जाइड का साइंटिस्ट, वेरी गुड। Okay, so I'll talk to the teachers and then we will plan to write a book about Panchkula and Chandigarh. Okay? What do you say? There is a book Storm in Chandigarh. Yes, ma'am. लिखोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. ठीक है? तो अब देखो, अब अच्छा ट्रैवल करना पसंद है? सबको पसंद है ट्रैवल करना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमने जो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे, ये मेरे बहुत बड़ी वर्कशॉप है, उसके छोटे से सैंपल हैं कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। तो हम, ठीक है, तो अब हम अपने बारे में काम करना शुरू करेंगे, खुद को जानने का, अपने सेक्टर को जानने का, अपनी सिटी को जानने का, अपनी स्टेट को जानने का, अपने रीजन को जानने का, अपने देश को जानने का, और फिर दुनिया को जानने का। ठीक है? ठीक है? Okay, ma'am. चलो, तो हम क्यों जानना चाहिए? हमें एक क्वेश्चन आता है कि क्यों जाने, क्या फायदा होगा, है ना? तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं क्रिएटर जो कुछ बनाते हैं, और एक होते हैं कंज्यूमर जो उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? जैसे स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया और हम सब आईफोन को यूज करते हैं। जैसे किसी ने ये जूम ऐप बनाई और हम सब जूम ऐप को यूज कर रहे हैं, है ना? तो हम सब कंज्यूमर होते हैं जो चीजें दूसरे लोग बनाते हैं। अब हमें भी कुछ बनाना है, या तो हम किसी की नौकरी कर सकते हैं कि हम एप्पल के लिए नौकरी कर लें, हम जूम के लिए नौकरी कर लें, या फिर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसको लोग कंज्यूम करें। तो आप लोग क्रिएटर बनना चाहोगे कि कंज्यूमर? Creator. Creator. I'm creator. Ma'am, creator. Ma'am creator. Ma'am creator. तो फिर क्रिएटर कैसे बनेंगे? बताओ, क्या क्या क्रिएट करोगे? मुझे कुछ ब्रिलियंट आइडियाज चाहिए कि क्या हम क्रिएट कर सकते हैं जो अभी तक दुनिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है। ऐसी नई चीज हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? दूसरा का भलाई करके। क्या? दूसरा का भलाई करके। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्लियरली बोलो। मैम फ्लाइंग कार। फ्लाइंग कार, हाँ बना सकते हैं। फिर आपको उसके लिए नॉलेज है आपके पास पूरी? बहुत अच्छा आइडिया है। मैम जब मैं बड़ी होंगी तो मैं रॉकेट बनाऊंगी। रॉकेट बनाएंगे आप? And we can search on Google. लेकिन जो गूगल पे है वो तो सबके पास है ना, हमें तो वो बनाना है जो गूगल के पास भी नहीं है। जो गूगल देख के तो कोई भी बना सकता है, हमें वो बनाना है जो गूगल के पास भी नहीं है, जो गूगल को भी हम देंगे। जब गूगल सर्च करेगा तो वो हमारे पास आएगा। समझे? मैम वी कैन हेल्प पुअर पीपल्स। कैसे हेल्प करोगे बेटा? स्पेसिफिकली बताओ मुझे, क्या क्या हेल्प करना चाहते हो आप?
मैम उनको हम क्लोथ्स देके, मैम उनको मैम फूड देके। बेटा फूड तो हम एक बार दे देंगे ना, फिर उनको अगले दिन फिर भूख लग जाएगी, फिर क्या करेंगे वो? हम उसे हम अपनी कंपनी मैम, अगर हमारे पास कोई नौकरी है मैम, हम उसमें लगा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेशल टैंक मैम, जिसके ऊपर एक शील्ड बनी हो, कोई भी टैंक उसको हरा ना सके, और वो हमारे देश इंडिया के लिए भी हेल्पफुल होगा। वेरी गुड मैम। मैम बेटा, मैम हम ना लोगों को ना आश्रम में छोड़ सकते हैं। कौन से आश्रम में बेटा? हेलो, से क्रिएटर के बीच में फर्क क्या होता है? कंज्यूमर और क्रिएटर के बीच में जो फर्क होता है वो इस एक वर्ड का होता है, क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी। हमेशा क्यूरियस रहो, क्वेश्चंस पूछो, टीचर से, पेरेंट्स से, हर किसी से क्वेश्चन पूछो, गूगल से क्वेश्चन पूछो, और ढूंढो कि हम क्या नया कर सकते हैं, हम क्या ऐसा क्रिएट करके जाएं कि हमारे बाद भी लोग याद रखें। अभी किसी ने आइंस्टाइन का नाम लिया, आइंस्टाइन को गए कितने साल हो गए, फिर भी हम उसको यहाँ बैठ के याद करते हैं। हम में से कोई आइंस्टाइन नहीं मिला, उसको याद करते हैं ना। इसी तरह हमें भी कोई याद रखे, उसके लिए हमें क्यूरोसिटी चाहिए। अक्षर, ठीक है, बासु, ठीक है। तो क्यूरोसिटी हमेशा अपने अंदर रखना, और दो चीज करना। दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन दो क्वालिटीज जो हैं वो बहुत कॉमन है। इन दो के बिना कोई बड़ा आदमी बड़ा नहीं होता। एक, ट्रैवल। आप जितना ट्रैवल कर सकते हो करो। स्कूल में, कॉलेज में हम वो सीखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो सब लोग हम साथ सीखते हैं, लेकिन उसके आगे सीखने के लिए हमें खुद ट्रैवल करके सीखना होता है, खुद पढ़ के सीखना होता है। तो ट्रैवल और रीडिंग, मेक श्योर दैट you travel to at least 2 to 3 new places every year, and make sure you read at least one book a month. So 12 books in a year and one book a month minimum is what you need to read, so that you get ideas about कि हम कर क्या सकते हैं। घर में बैठने से आइडियाज नहीं आते, अपन जितना हम जानते हैं उतना ही जानने से आइडियाज नहीं आते। तो हमें बहुत सारे आइडियाज लेने हैं। ठीक है, ये मेरा एक फ्रेमवर्क है कि अपने शहर में हर 2 हफ्ते में अपने ही शहर में कुछ नया देखने जाओ, अपनी स्टेट में 1 से 3 महीने में देखने जाओ, 6 महीने में अपने रीजन में, और once in a year go to another part of the country, और 2 से 5 साल में एक ट्रिप इंडिया से बाहर का। और यहाँ सब इतनी सारी जगह हैं आपसे पढ़ने के लिए, और कभी भी किसी को पढ़ना हो प्लीज पिंग मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद द नेक्स्ट बुक्स यू वांट टू रीड। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टेकन 8 minutes मोर देन व्हाट आई वाज असाइंड। तो अब जिसके पास जो भी क्वेश्चन हो, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। चैट में डाल दीजिए या पूछिए अनम्यूट करके। बेटा अब आप पूछ सकते हो, पहले आप सब लोग बीच में पूछ रहे थे ना, अब आप पूछ सकते हो। अनु, मैंने ये महसूस किया है कि पेरेंट्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, सिर्फ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो मामला बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी है ना, क्योंकि सेशन तो पेरेंट्स का है। इफ द पेरेंट्स विल नॉट पार्टिसिपेट तो बच्चों में आदत कैसे डालेंगे? बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज द रोल मॉडल। अगर पेरेंट्स कुछ क्वेश्चंस पूछते होंगे तो उन बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी आएगी ना, कि वो पूछेंगे। बच्चे तो पूछ रहे हैं, बच्चों में तो क्यूरियोसिटी होती है, बल्कि हम क्यूरियोसिटी दबा देते हैं बच्चों की। लेकिन होना ये चाहिए कि उनकी क्यूरियोसिटी को एक्सपेंड करने के लिए व्हेन द पेरेंट्स विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस, तो कि हम इतने टाइम से वर्कशॉप करते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है तो उस टोटल उसमें जान नहीं आती है। ऐसा नहीं लगता कि ये पेरेंट्स का सेशन है, ऐसा लगता है जैसे एज इफ ये बच्चों के लिए जब हम सेशन करते हैं तो हम बच्चों के लिए बताते हैं,
लेकिन आज की उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया अभी तक। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स पूछें। जी सर, आई होप ऐसे क्वेश्चंस पेरेंट्स पूछना शुरू करें बच्चों के साथ। दिस इज लाइक इट्स लाइक अ ग्लिम्प्स ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क बियॉन्ड जो हमारे कोर्स क्यूरिकुलम स्कूल में होता है, उसके बियॉन्ड जाके अगर वो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट आई एम ऑल्सो होपिंग सर कि बच्चे इंसिस्ट करेंगे कि हमें अब शहर में अपनी पुरानी चीज दिखा के लाओ, तो होपफुली सम पेरेंट्स विल रिस्पॉन्ड। ये पीहू सिंह जी हैं, इन्होंने हाथ रेज किया। पीहू सिंह जी प्लीज पूछिए आप क्वेश्चन प्लीज। जी सर, काफी लोग लिख रहे हैं कि बच्चों का आईडी है लेकिन वो लोग अटेंड कर रहे हैं। हर्षित आपके नाम का मतलब है कि जो खुश हुआ, हर्ष हुआ। जैसे हर्ष का मतलब होता है कि आपने कुछ ऐसा किया कि जिससे आप खुश हो गए और आप हमेशा खुश स्टेट में रहते हैं। हर्षित का मतलब आप हमेशा खुश स्टेट में रहते हैं। मे यू ऑलवेज स्टे दैट वे। Good morning, ma'am. Good morning, director sir, and good morning, everyone. Ma'am, this is Nishi Chadda from DC Model staff only. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Hanji, ma'am, I want to ask one question from you. That is, when Dev, we call by name, when we call Dev, so does it define Dene Wala also? Like as you have explained Divya, so Dev is like when we combine Dev and Diya, so it is related, is it related to someone who has the giving properties also, the one person who is giving all the more? No, Dev has nothing to do with Dev, but the point is कि is self-illuminated, तो उसकी रोशनी से अपने आप सारे बाकी सबके लिए रोशनी हो जाएगी। जब रोशनी हो जाती है तो ऑब्वियसली उनको मिलता है, लेकिन जो फिजिकली कुछ देने वाला हो वो नहीं मतलब है। नहीं, बट जो हम गायत्री मंत्र में जहां हम इस्तेमाल करते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, वो देवस्य देव को रिप्रेजेंट कर रहा है या दिव्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं आता है सर, आता है संस्कृत में। आई थिंक संस्कृत टीचर जो है वो शायद ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन वो दिव धातु से ही देवता और देवी और ये देव से रिलेटेड जो उनका धातु दिव रहता है। Because ma'am, when we say Dev na, so it is related to the युग। जैसे अभी हम काफी कोरोना वायरस में भी बात कर रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया है। अब कलयुग का भी एक चरण ऊपर है, बिकॉज नाउ द न्यू एरा इज गोइंग टू बिगिन। सो सतयुग का अगर हम बात करते हैं, हम काल के अगर बात करते हैं, सतयुग हो गया, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो जब हम देव की बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू सतयुग। एंड सतयुग के जो बीइंग्स थे दैट ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ गिविंग। That is why I have asked you this question. मैम मेरी अंडरस्टैंड, वैसे तो हमारे ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट हो सकते हैं। तो जो चतुर्युग का है, इफ यू अलाउ मी 2 minutes, आई कैन शेयर अ स्लाइड ऑन दिस। आई डू अ सेशन ऑन देवी महात्म्य, उसमें मैं एक टाइम का एक्सप्लेन करती हूँ जो एक्सप्लेन है। तो ये जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग है, ये एक बार नहीं आता। ये इसके 71 साइकिल्स होते हैं चतुर्युग के, तो एक मनवंतर बनता है। 14 मनवंतर का एक एक ब्रह्मा का दिन बनता है। तो ये हमारी जो टाइमलाइन है ये बहुत बड़ी है, और जो देवता है ये एक गुण है, ये कोई इंसान नहीं है कि आप देवता हो और मैं दानव हूं। इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गुण। अगर आप में वो गुण है तो आप देवता स्वरूप हो। इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत रिजिड नहीं है अब्राहमिक रिलीजन्स की तरह। हमारे लिए, अब आपके लिए आपके माता पिता आपके देवता हैं, मेरे लिए मेरे माता पिता देवता हैं, आपके लिए आपके टीचर्स देवता हैं, मेरे लिए मेरे टीचर्स देवता हैं। तो देवता वो हैं जो जिनकी लाइट से हम इल्यूमिनेट हुए। मेरे टीचर्स के, मेरे गुरुओं के ज्ञान से मुझे ज्ञान मिला, मेरे पेरेंट्स के ज्ञान से मुझे ज्ञान मिला, तो वो मेरे लिए देवता हो गए। और फिर हमारे कुछ कॉमन देवता है जिनके सबके
जिनके गुणों से हम प्रकाशित होते हैं। अब सूर्य है, सूर्य के इल्यूमिनेशन से हमारा दिन होता है, हमारी दिनचर्या चलती है, हमारी ऋतुएं बनती हैं। तो सूर्य हम सबके लिए देवता हो गए, चंद्रमा हम सबके लिए देवता हो गए। फिर हमारे पर्सनल देवता हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे पर्सनल देवता हैं जो हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु हैं। तो ये कंसेप्ट इज फार मोर डीपर देन जस्ट सेइंग कि अच्छे बुरे और देवता और दानव। In context of human values, I was asking. In context of human values, the person inner self, the inner self of the person. हमारी इनर लाइट, इन एग्जैक्टली जो मेडिटेशन की बात कर रहे थे कि हमारी इनर लाइट जब हम बढ़ा देते हैं इतनी कि उससे दूसरों को भी फायदा होता है, तो हम देवता स्वरूप हो जाते हैं। हाँ, this is what I was asking. Yeah, thank you so much for the clearance, ma'am. Thank you so much. Anybody else? Any questions? पेरेंट्स अगर आप नहीं पूछेंगे तो हम आपसे पूछेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अगर कोई बच्चा एक इनिशियल स्टेज से लिखना शुरू करता है तो एक्चुअली मैम लिखना तो मेरे को नहीं समझ आता, लेकिन जैसे वो उसके साथ पूरे दिन में क्या हुआ, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, एक डायरी की तरह, तो मैम उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज हो सकती है कि उसको इस फील्ड में हम हेल्प कर सके? कुछ आवाज नहीं आ रही। ब्लॉगिंग आपको सुनाई दे रहा है? जी मैम। तो ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा टूल है। आप उसको फ्री वर्डप्रेस और ब्लॉगस्पॉट पे, ब्लॉगर पे आप फ्री ब्लॉग शुरू करवा के दे सकते हैं, जिससे कि वो पब्लिश करें और पब्लिश करके उनको फीडबैक मिलनी शुरू होगी लोगों की, बहुत लोग पढ़ पाएंगे। द ओनली थिंग यू विल हैव टू बी केयरफुल इज कि वो ऐसा कुछ नहीं डालें जिसमें कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील हो जाए या जो उसको कुछ हार्म कर सकती है। लेकिन अगर वो अपने थॉट्स लिखना चाहे तो वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बाहर से फीडबैक, अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जी मैम, वो अप्रिसिएशन का ही मुझे लगता है। मैम क्या करती हूँ, कई बार न्यूज़पेपर्स में से या कहीं से कोटेशंस आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो उनको भी अपनी डायरी में मार्क करती है, कोशिश करती है। उसको बोलिए लिखने के लिए, ब्लॉग शुरू करवा दीजिए और बोलिए लिखना, पब्लिश करना शुरू करें, तो अपने आप फीडबैक आएगी और अपने आप वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टू बिगिन विद। इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू बिल्ड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। या मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी इन पेरेंट के लिए। हम लोग स्कूल में बहुत सारे राइटअप्स भी मांगते हैं बच्चों से, हम न्यूज़पेपर के लिए मांगते हैं बच्चों से, और भी कॉम्पिटिशन्स भी रखते हैं। तो मैं चाहूंगी अगर ये बच्चा इंटरेस्टेड है इस चीज में तो ये अपने आप आगे आए, अपनी क्लास टीचर को बताए, तो हम लोग बिल्कुल एंटरटेन करेंगे इसको और इनकरेज भी करेंगे इसको आगे आने के लिए। आप देखेंगे मैडम, कई बच्चों ने जो लिखा है उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, और उन बच्चों की हमने उन बच्चों को एक पर्टिकुलर स्पेस दी है अपने स्कूल की वेबसाइट में। अगर आप वेबसाइट में सर्च करेंगे तो उन बच्चों के आर्टिकल्स क्या लिखा है उन्होंने, किस डेट को पब्लिश हुए, किस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए, वो आपको सब मिलेगा। यूथ डाइजेस्ट करके हमारा एक कॉलम है, वहां पे हमारा एक टैब है यूथ डाइजेस्ट। उसमें हम लोग बच्चों के जितने भी राइटअप्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में आए हैं, या अगर वैसा भी लिखना चाहते हैं तो उसमें सब के सब हमने वहां स्टोर करके रखे हुए हैं, तो चिल्ड्रन कैन रीड इट फ्रॉम देयर एंड दे कैन पार्टिसिपेट आल्सो। मतलब वो 6th क्लास से ऑनवर्ड है, आपका बच्चा शायद 5th क्लास में है। आई थिंक अगर उसको थोड़ा सा आप पुश करेंगे, थोड़ा टीचर पुश करेंगे, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक बच्चे को जब वो लिखेगा, जब उसका वेबसाइट में भी नाम आएगा, जब उसका न्यूज़पेपर में कॉलम आता है, जब मुझे याद है जब मेरा पहली बार कभी न्यूज़पेपर में नाम आया था, उस न्यूज़पेपर को मैंने कितने दिन तक अपने पास समेट कर रखा था कि मेरा नाम आया है, हर एक को दिखाता था मैं। अब तो जरूरत नहीं लगती है, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी कि न्यूज़पेपर में नाम आया है ना। तो मैं लिखती हूँ कॉलम्स, लेकिन फिर भी हर बार नाम देख कर अच्छा ही लगता है। हाँ, तो ये जरूरी है। हमारा EHV का मतलब ही ये है कि हम बच्चे के इनर में जाएं ना,
हम सिर्फ आउटर में जा रहे हैं, हम चांद तक तो पहुंच गए हैं लेकिन पड़ोस तक नहीं पहुंचे हैं, जो जरूरी है। आप अपने अपने लेवल पर देखिए, आपको अपने पड़ोस वाले पर्सन्स के बारे में भी कितना पता है। अनु इज आस्किंग फॉर द कि आपकी इसमें शहर में क्या पुरानी चीज है, मैं कहता हूँ पड़ोस में नई चीज क्या है वो भी पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं सर। मैं शेयर करती हूँ कि जब पहला लॉकडाउन हुआ था 21 डेज का, तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये 21 दिन का प्रोग्राम किया था, वेयर आई आस्क्ड 21 क्वेश्चंस कि जो लोगों को अपने बारे में जानने की हेल्प करें। तो उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि आपके शहर के पास सबसे क्लोजेस्ट नदी कौन सी है, किस नदी का पानी पीते हो आप। 99% पीपल डोंट नो कि हमारे घर में पानी किस नदी का आता है। या फिर हमारी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में किसका नाम क्या है। एक ग्रैंड पेरेंट के बाद लोग बच्चों को ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के आगे के नाम नहीं पता होते। या फिर हमारे यहाँ की कौन सी चीज फेमस है, हमारे शहर की कौन सी चीज फेमस है, हमारे शहर की किताबें, कितनी सारी किताबें लिखने वाली हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी अगर हमारे स्कूल से कोई चंडीगढ़ के पंचकुला के बारे में एक अथॉरिटेटिव किताब लिखे। Any other questions? I think parents have अपनी उनकी सारी queries solve हो गई हैं और I think they're writing in the chat box, ma'am. Yes. For more queries. Okay. We'll definitely going to have another session with you. Definitely we can do. जहाँ पे मुझे लगता है कि it was really a fabulous interactive session, I could say it. और एक आई ओपनर भी था हमारे लिए, बिकॉज जो क्वेश्चन अभी आपने पूछे, अगर मैं उसको बहुत डीपली अभी सोचने बैठी तो मुझे भी लगा कि इतने सालों से यहाँ पे, आई थिंक सो आई एम रिजाइडिंग इन पंचकुला फ्रॉम लास्ट 22 years एंड स्टिल आई एम नॉट अवेयर ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स। सो ये सब चीजें आई थिंक सो अगर पहले से ही ग्रो अप होती हैं तो क्यूरियोसिटी जो वर्ड आपने यूज किया वो एक बहुत परफेक्ट वर्ड है, और वो क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं हमें लेके जाती है। तो that is must in every child. So thank you so much, ma'am, for such a fabulous and interactive session. It was really honor to have you over here with us. That's really great, ma'am. I thank you for reconnecting with me with my own school. So आप लोगों को थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों का हक है कि आप मुझे जब चाहे बुला सकते हैं, जो भी काम कहें, सर जो भी कहें वो मेरे लिए आदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद बच्चों से बात करके। थैंक यू सो मच सर। अनु, मैं रिकॉल करता हूँ, नो डाउट 33 इयर्स हम लोग नहीं मिले, 34 इयर्स हो गए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं मैसेज मिलता रहता है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ जो मुझे किसी बच्चे ने आकर बताई। उसको इन्फोसिस में जॉब मिली, तो उसने आकर मुझे बताया कि सर मैं इन्फोसिस में जॉब कर रहा हूं। तो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने मुझसे पूछा कि तुमने अपने स्कूल का ऑनर बोर्ड देखा है? तो बच्चे ने कहा कि हाँ मैंने देखा है। तो उन्होंने कहा कि ऑनर बोर्ड में सबसे टॉप पे किसका नाम लिखा है? और वो बच्चा कितना ऑनर बोर्ड पढ़ता होगा या कैसे, उसने कहा उसमें अनुराधा गोयल का नाम था। तो ये बात जब उसने बताई तो यू वर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ दैट चाइल्ड एंड तुमने कहा वो अनुराधा गोयल हूं मैं। अब ये मालूम नहीं तुम्हारी नोटिस में है कि नहीं है कि वो कौन था बच्चा या कैसे हुआ, लेकिन दैट शोज कि क्यूरियोसिटी का एक अपना एक है। तो मेरे हिसाब से जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो अभी हमने आपके साथ जाति की है कि आपको टाइम कम दिया है, और मुझे लगता है इतने कम टाइम में अभी बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करना सबसे बड़ा जरूरी काम है।
जो कि आज का बच्चा जब कभी टीचर कुछ चीज एक्स्ट्रा बताता है तो वो ये कहता है कि सर ये जो मुझे बता रहे हो ये क्या पेपर में आएगा? अगर तो ये पेपर में आएगा तो मैं सुनने को तैयार हूं, और अगर ये पेपर में नहीं आएगा तो आप मेरा समय जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या मुझे इन चीजों के लिए कुछ जानना नहीं है. माई जॉब इज टू बिकमिंग ग्रेट. They are least bothered about the goodness in them. This is the problem that our country is facing at present. मुझे लगता है सब अच्छे हैं, अब सिर्फ हमें उनको दिखाना है कि तुम अच्छे हो. वो खुद ही भूल चुके हैं कि हम अच्छे हैं. So अनु तुम्हारा थैंक्स तो नहीं करूंगा. हाँ, पर मैं चाहूंगा पेरेंट्स से कि पेरेंट्स वो बुक स्कूल की लाइब्रेरी में है, अगर आपको थोड़ा सा भी रीडिंग का शौक है, क्योंकि आज जो बात हुई है वो पूरी तो हो नहीं पाई है. हमें अभी ये भी जानना है, जो क्वेश्चन अनु ने पूछे हैं आपसे, कि आपको अपने चंडीगढ़ से 12 साइंटिस्ट कौन से हैं, उनके क्या नाम है, सबसे अच्छी बुक कौन सी है जिससे मैं अपनी सिटी के बारे में जान सकता हूँ, कौन सी नदी है जिससे मैं पानी पीता हूँ, ये सारी चीजें जाननी है, ताकि अगली बार जब दोबारा वर्कशॉप हो तो उसमें आप आंसर दे सकें. और अदर पेरेंट्स को भी जानना है ये बात. और ये जितनी भी आपकी फीडबैक्स हैं, दैट फीडबैक विल बी पास्ड ऑन टू अनुराधा. तो आपसे पेरेंट्स रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया तब भी आप हमें इस फीडबैक, इस EHV DCMS पे अपना फीडबैक दें. आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन दें. अगर आप इंटरेस्टेड हैं अनुराधा से फिर से जुड़ने के लिए, कुछ और पूछने के लिए, तब भी आप अपना ईमेल भेजिए. जब तक आप ईमेल नहीं भेजेंगे हम नहीं समझेंगे कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, और हम आपको वो एड्रेस अनुराधा का शेयर नहीं करेंगे. हम उसी को शेयर करेंगे जो अपना इंटरेस्ट शो करेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पेरेंट्स. थैंक यू टीचर्स. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू अनुराधा मैम. और बच्चों को ये सर ने भी बता दिया कि हमारे पास ये बुक अवेलेबल है, लोटस इन द स्टोन. एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ये रिकमेंड करूंगी सबको कि यू मस्ट रीड इट, बिकॉज आई एम ऑल्सो रीडिंग. और इतना मुझे पता चला है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे इंडिया में इतना कुछ है. एंड द वे शी इज राइटिंग और शी इज रिटन इज समथिंग अमेजिंगली शी इज डिस्क्राइब्ड. ऐसा लगता है जैसे आप खुद चल रहे हो और खुद वो चीजों को फील कर रहे हो. मैम ने इस तरह से लिखी हुई है ये बुक. बहुत सिंपल इंग्लिश है, आप बहुत आसान से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. Thank you Anuradha ma'am for such a wonderful session. I must say it. आपने ये जो वर्ड सर बोल रहे थे कि बच्चों के अंदर एक फ्लेम जो जगा दी क्यूरियोसिटी की, वो वाकई जग गई है. मुझे लगता है कि हमारे ये छोटे बच्चे जो हैं 5, 6, 7 क्लास के हैं, इनमें बहुत जल्दी ये चीज हो जाती है, और बच्चे सबके सब इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों के लिए. एंड दिस इज एन ओपनिंग ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ करियर फॉर अस ऑल्सो. बच्चों के लिए एक नया करियर, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स और बिकमिंग इंजीनियर्स और अदर्स. I think this is another way of exploring our own country plus exploring ourselves, और एक नया आपके लिए प्रोफेशन भी है. Thank you so much Anuradha ma'am. Thank you so much. Okay Anu. Bye beta. Thank you sir. Bye sir. Bye sir. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Bye ma'am. Bye sir.